Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing great. So, I have already uploaded 11 parts of this PYQ series. If you haven't watched them yet, check them out. The links are in the description. So, today we are moving on to part 12 where I'll cover more important PYQs. So, make sure you watch till the end. Also, don't forget to join my Telegram channel, Study Sociology, for important updates, study materials, and discussions. The link of this Telegram channel is in the description box. So आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल. लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू अबाउट द PDF which I have created for you all. As I have already told you in the previous videos that this PDF is very useful for the students who are preparing for UPSC, NET, JRF and other competitive exams. So the original price of the PDF is 199, that is 200 rupees, but for a limited time I'm offering a 50% discount, so you can get it in just 99 rupees. I have already uploaded a video explaining all the details. Check it out. The link is in the description. So hurry up guys, if you want the PDF आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए बिकॉज ये डिस्काउंट भी कुछ ही टाइम के लिए बचा है. All right. So let's begin with our today's first question, that is question number 148. Which of the following sociologists contributed significantly to the development of conflict theory in sociology? A. Karl Marx, B. Tackett Parsons, C. Ralph Dahrendorf, D. C. Wright Mills. Very easy question. क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर दीजिए. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किन किन थिंकर्स ने डेवलप करी थी, इन कोड्स से आपको आंसर देना है. Okay, so the correct answer is Karl Marx, Ralph Dahrendorf and C. Wright Mills. Tackett Parsons से कोई मतलब नहीं है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का. That is option A, C and D. Option 2 is the correct answer. Question number 149. Which of the following are key elements of Anthony Giddens' structuration theory? A. The duality of structure, the complete dominance of structure over agency, the recursive nature of social practices, the idea that individuals have no influence on social structure. Anthony Giddens की structuration theory से आंसर कीजिए. Okay, so the correct answer is option 2, that is A and C. A देख लेते क्या है. The duality of structure, correct. सी कह रहा है द रिकर्सिव नेचर, उन्हीं का कीवर्ड ही तो है ये, द रिकर्सिव नेचर ऑफ सोशल प्रैक्टिस. ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. द कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ओवर एजेंसी, स्ट्रक्चर और एजेंसी इक्वली उन्होंने देखा था. और द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन स्ट्रक्चर, गलत है. उनका इन्फ्लुएंस होता है. क्वेश्चन नंबर 150. Which of the following best describes Zygmunt Bauman's concept of liquid modernity? A shift from rigid social structure to flexible and uncertain ones. Option B, the increasing stability of social relationships in modernity. Option C, the constant change in identities, work and lifestyles. Option D, the increasing role of traditional norms in modern society. Question number 150. जो जिगमंड बोमन है उनकी लिक्विड मॉडर्निटी से क्वेश्चन है. आपको इन कोड्स से आंसर देना है. ओके, सो ऑप्शन ए कह रहा है अ शिफ्ट फ्रॉम रिजिड सोशल स्ट्रक्चर टू फ्लेक्सिबल एंड अनसर्टेन वंस. की एस्पेक्ट ऑफ, की फीचर ऑफ लिक्विड मॉडर्निटी. एंड ऑप्शन सी, द कॉन्स्टेंट चेंज. देखो कीवर्ड है चेंज. जो भी चेंज आ रहे हैं हमारे आइडेंटिटीज़ में, वर्क में, लाइफस्टाइल में, वो सारे काउंट होंगे. वो सब हमने लिक्विड मॉडर्निटी में पढ़ा है. That is option 1 is correct. Question number 151. Which of the following sociologists contributed to the study of symbolic interactionism? Symbolic interactionism से question है. A. Herbert Blumer, B. Irving Goffman, C. Karl Mannheim, D. George Herbert Mead. इन कोड्स से आपको आंसर देना है. Question number 151. So the correct answer is A होंगे ही होंगे, हर्बर्ट ब्लूमर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड होंगे. कैन यू गाइस टेल मी इन द कमेंट्स अर्विंग गॉफमैन होंगे या कार्ल मेनाहेम होंगे?
Okay, so the correct answer is A, B and D. अर्विंग गॉफमैन होंगे. कार्ल मेनायम से कोई मतलब नहीं है सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म का. सो ब्लूमर, गॉफमैन और मीड ने डेवलप किया था सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म को. उनका फोकस किस पे था? सोशल मीनिंग्स और ह्यूमन इंटरैक्शंस पर. जो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिस्ट्स हैं उन्होंने हमेशा मीनिंग और इंटरैक्शन पे ही फोकस किया है, सिम्बल, साइन, इन सब पर. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 152, which says which of the following are characteristics of Michel Foucault's concept of governmentality? A. A regulation of populations through knowledge and power. Option B. The reduction of state control in everyday life. Option C. The rise of self-discipline among individuals. Option D. The use of biopolitics to shape citizen behavior. इन कोड्स से आपको आंसर देना है. आज सारे ही ऑलमोस्ट कोड बेस्ड क्वेश्चन है. हमने स्टार्टिंग में, इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में काफ़ी इजी क्वेश्चंस देखे हैं. कॉन्सेप्ट बेस्ड टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने करे हैं. पर अब हम जैसे जैसे आगे मूव करते जा रहे हैं एग्ज़ाम तक, अब हम थोड़े टफ क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट पार्ट पर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 152. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 152 इज़ ऑप्शन 4, दैट इज़ A, C एंड D. ए कह रहा है नॉलेज एंड पावर. देखो उनका कीवर्ड है रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू नॉलेज एंड पावर. द राइज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन अमंग इंडिविजुअल, और बायोपॉलिटिक्स उनका कीवर्ड है, उनकी थ्योरी ही थी. एवरीडे लाइफ से उनसे कोई रिलेशन नहीं है उनका. क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन रॉबर्ट मर्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन. आज का सबसे ईजी क्वेश्चन. ए. मैनिफेस्ट फंक्शन आर इंटेंडेड consequence of social action. B. Latent function are unintended consequences of social action. Option C. Both manifest and latent function always contribute to social stability. Option D. Social institutions can have both manifest and latent functions simultaneously. आपको अगर इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है, आप एलिमिनेट कर सकते हो जो गलत आपको लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 153. देखो मैनिफेस्ट और लेटेंट हमेशा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. वो तो जो लेटेंट होता है वो अनइंटेंडेड होता है ना, कॉन्सिक्वेंस. तो देयरफॉर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट. देयरफॉर ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 154. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मैनुअल कैसल्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क सोसाइटी? Option A, a society primarily shaped by digital communication network. Option B, the decline of global interconnectedness due to nationalism. Option C, the central role of information and knowledge in shaping power structures. Option D, the diminishing importance of technology in social organization. इन कोड्स से आंसर दीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़, एक तो ए करेक्ट है, द सोसाइटी प्राइमरीली शेप्ड बाय डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क. आपको नहीं भी पता था फिर भी इसका कॉमन सेंसिकल आंसर है ये, ए करेक्ट होगा. एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द सेंट्रल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इन शेपिंग पावर स्ट्रक्चर. सो देयरफॉर ऑप्शन 2, दैट इज़ ए एंड सी इज़ करेक्ट. सो कैसल का जो नेटवर्क सोसाइटी है, थ्योरी है, this theory highlights the role of digital communication in shaping global structures. Question number 155. Which of the following are associated with Jürgen Habermas' concept of public sphere? A. A space where individuals engage in rational debate. Option B. A sphere dominated by the state and corporate interests. Option C. A fundamental component of democratic societies. Option D, a platform for private non-political discussions. Codes, I hope visible हैं codes. एक ऑप्शन इधर है, बाकी 3 ऑप्शंस इधर हैं. कोड्स. क्वेश्चन नंबर 155 यागन हेबरमास के पब्लिक स्फेयर से क्वेश्चन है. So the correct answer is option 3, that is A and C. A कह रहा है a space where individuals engage in rational debate, और C कह रहा है fundamental component of the democratic societies. So the public sphere
इज़ इसेंशियल फॉर रैशनल डिबेट एंड डेमोक्रेसी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस होता था बाय स्टेट एंड कॉरपोरेट पावर. Question number 156. Which of the following statement about Pierre Bourdieu's concept of field are correct? Option A, a field is a structured space with its own rules and power relations. Option B, fields are interdependent of social hierarchies and power structures. Option C, individuals within a field compete for social, cultural and economic capital. Option D, the position of individuals in a field is shaped by their habitus and capital. देखो उनके कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको फील्ड की थ्योरी पता है बूर्डो की. सो द करेक्ट आंसर इज, देखो ए कह रहा है अ फील्ड इज अ स्ट्रक्चर्ड स्पेस विद इट्स ओन रूल्स एंड पावर रिलेशंस, विच इज करेक्ट. ऑप्शन बी कह रहा है फील्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल हायरार्कीज, गलत है. ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट कहाँ होते हैं फील्ड्स, हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होती है, हर फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ऑप्शन सी, इंडिविजुअल्स विद इन द फील्ड कम्पीट फॉर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कैपिटल, उनकी थ्योरी भी है, करेक्ट. उन्होंने सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कैपिटल की बात करी. ऑप्शन डी, द पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ फील्ड इज शेप्ड बाय हैबिटस एंड कैपिटल, दैट इज ए, सी एंड डी. ऑप्शन 4. तो बूर्डो की जो फील्ड की थ्योरी है इज अ स्ट्रक्चर्ड स्पेस वेयर इंडिविजुअल्स कंपीट फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 157. विच ऑफ द फॉलोइंग are characteristics of reflexive modernization as proposed by Ulrich Beck and Anthony Giddens. इनसे हमने कल भी एक क्वेश्चन किया है. ऑप्शन ए कह रहा है द आइडिया दैट मॉडर्निटी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस इट्स ओन फाउंडेशंस. ऑप्शन बी, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ साइंस इन रिड्यूसिंग ऑल रिस्क्स. ऑप्शन सी, अ heightened awareness of environmental and technological risks. Option D, the rise of traditional authority in decision making. इन कोड्स से आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 157. रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी जो कि उल्रिक बेक और एंथनी गिडेंस का कॉन्सेप्ट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए कह रहा है द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस इट्स ओन फाउंडेशन, विच इज़ करेक्ट. ऑप्शन सी कह रहा है a heightened awareness of environmental and technological risks. So, reflexive modernization involves questioning modernity's impact और एक्नॉलेज करता है उनके जो भी रिस्क्स हैं जो किससे एसोसिएटेड है, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन से. ये सब इनके रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी में था. All right, moving forward to question number 158. Which of the following sociologists have significantly contributed to the study of postmodernism in sociology? A. Jean Baudrillard. B. Michel Foucault. C. Max Weber. D. Lyotard. Very easy question. आपको आंसर नहीं भी पता, आप एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो. मैक्स वेबर कहाँ आएंगे? मैक्स वेबर तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करो उनको. तो सी हमारा गलत हो गया. ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 में भी सी है एंड 3 में भी सी है. देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बॉड्रिलार्ड, फुको एंड लियोटार्ड कंट्रीब्यूट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी में, पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट में. सो इन्होंने क्रिटिक किया था ग्रैंड नैरेटिव्स को एंड एम्फेसाइजिंग फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटीज़. हमेशा याद रखना इनका कीवर्ड. Question number 159. Which of the following are key components of Weber's concept of rationalization? Option A, the increasing reliance on efficiency and bureaucracy. Option B, the decline of traditional and value-based decision making. Option C, the emotionalization of social institutions. Option D, the rise of legal rational authority. यहाँ पे कोड्स दिए हैं, इन कोड्स से आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 155 वेबर की रैशनलाइजेशन की जो थ्योरी है उससे क्वेश्चन है.
Okay, so the correct answer is option 1, that is A, B and D. The increasing reliance of efficiency and bureaucracy. देखो आप कीवर्ड्स ढूंढा करो अगर आपको नहीं भी आता है आंसर. ब्यूरोक्रेसी उनकी फेमस थ्योरी है. बी, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल एंड वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग. डी कह रहा है राइज ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी. अब आप मुझे बताओ रैशनलाइजेशन में इमोशनलाइजेशन कहाँ से आ जाएगा? तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ना इमोशनलाइजेशन का. तो आप पहले ही ऑप्शन सी को एलिमिनेट करते. रैशनलाइजेशन की जो उनकी थ्योरी है, दिस थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ मॉडर्न सोसाइटीज़ फेवर एफिशिएंसी या लीगल रैशनल अथॉरिटीज़ एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 160. Which of the following describe key aspect of globalization in contemporary sociology? Option A, the increasing interconnectedness of economies and culture. Option B, the complete disappearance of national boundaries. Option C, the rise of transnational corporation and digital network. Option D, the decline of migration and cultural exchange. Question number 160. आज के टाइम का ग्लोबलाइजेशन क्या बताता है? कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी की बात हो रही है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ए एंड सी. द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज एंड कल्चर. ऑप्शन सी कह रहा है द राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस एंड डिजिटल नेटवर्क. कंप्लीट डिसअपियरेंस कहाँ हो रहा है? नेशनल बाउंड्रीज में. और डिक्लाइन भी कहाँ हो रहा है? माइग्रेशन में. देखो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरकनेक्टेडनेस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस. क्वेश्चन नंबर 161. Which of the following sociologists have worked on the concept of social capital? Very easy question. A, Pierre Bourdieu. B, Robert Putnam. C, Emile Durkheim. D, James Coleman. एलिमिनेट आप करके आंसर दे सकते हो, आपको नहीं आता है तो भी. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज आप इमाइल डरकाइम को एलिमिनेट सबसे पहले करते. इमाइल डरकाइम ने सोशल कैपिटल की कहाँ बात करी है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी. ए, बी एंड डी. ओके, सो कोड्स गलत दिए हुए हैं यहाँ पे. ए, बी एंड डी कहीं नहीं दिया है, देयरफॉर मैं यहाँ लिख देती हूँ ए, बी एंड डी. इसका करेक्ट आंसर है पियर बूर्दो, रॉबर्ट पुटनम और जेम्स कोलमैन ने सोशल कैपिटल की का जो कॉन्सेप्ट है उस पर इन तीनों का काम है, जो कि फोकस करता है नेटवर्क्स पर, ट्रस्ट पर एंड कलेक्टिव रिसोर्सेज. ये सारे इस थ्योरी के कीवर्ड्स हैं. ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कार्ल पोलियानीज कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेडनेस इन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी? A, the economy is always interdependent of social and political institutions. Option B, economic activities are deeply embedded in social relationships. Option C, market mechanism alone determine economic organization. Option D, economic systems are shaped by cultural and institutional factors. ये कोड्स दिए हैं, आपको इससे आंसर करना है. देखो जो कार्ल पोलियानी है वो इकोनॉमिक सोशियोलॉजिस्ट हैं. उनकी जो थ्योरी है एम्बेडेडनेस, उससे क्वेश्चन है. क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, बी एंड डी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डीपली एम्बेडेड इन सोशल रिलेशन एंड डी कह रहा है इकोनॉमिक सिस्टम्स आर शेप्ड बाय कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. ये तो बहुत बेसिक थ्योरी है जो हमने पढ़ी है. जो कार्ल पोलियानी की एम्बेडेडनेस की थ्योरी है, दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंटरट्वाइंड विद सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस. ऑल राइट, सो आज के क्वेश्चंस यहीं पे ही ख़त्म हो रहे हैं. So guys, that's all for today. If you find the video helpful, don't forget to like, share and subscribe. See you guys in the next video. Thank you.